اور میری عمر 18 سال ہونے سے پہلے ہی میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں بڑا تھا۔ وہ جب بھی مجھے کال کرتے تو میں گھبرا جاتی، کیونکہ وہ مجھ سے عجیب عجیب باتیں پوچھتا۔ لیکن جس رات میری شادی ہوئی تو پہلی چاہت کس نمبر 48 مرا ہبا کے کمرے میں آئی تھی۔ جب ہی مرا نے دیکھا کہ ہبا کا فون مسلسل بج رہا تھا اور وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، بلکہ مزے سے آئینے کے سامنے اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ہبا تمہارا فون بج رہا ہے۔ اور جب مرحا نے یہ کہتے ہوئے فون کی سکرین پر دیکھا تو ارم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ارم ڈارلنگ کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ مرحا نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہبا کے فون میں سارے نمبرز ارہم نے ہی سیو کیے تھے۔ اپنے ڈارلنگ کا فون ریسیو کر لو۔ مرحا نے ہبا کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے فون دیا تو ہبا نے منہ بناتے ہوئے فون ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں ہبا؟ مرحا حیران تھی کہ وہ ایسے ہی بیہیو کیوں کر رہی تھی۔ مما اگر انہوں نے ماما بابا سے بھی بات کرنے سے منع کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ ہبا حماد اور مل کے پریشان تھی۔ اف ہو ہبا، خود سے پتہ نہیں کیا کچھ سوچ لیتی ہو۔ نہیں کرتا منع، میں اپنے روم میں ہوں۔ تم کچھ بات کرنی ہے ارم سے بات کرو اور پھر میرے پاس آؤ۔ مرحا یہ سب کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ البتہ فون بجنا بند ہو گیا تھا۔ ارم کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنی بار تو معافی مانگ لی ہے، مگر جانے کیوں یہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مت کرو بات، ایک بار آ جاؤ، پھر میں دیکھوں گا کہ کس طرح آپ مجھے اگنور کرتی ہو۔ اب میں بھی آپ کی کال ریسیو نہیں کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے ارم کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ ارم صاحب اتنی خوش فہمی میں مت رو، وہ تمہاری کال تو ریسیو نہیں کر رہی تو کال بیک کیا خاک کرے گی؟ خود سے کہتے اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور آنکھیں موند دی۔ تبھی موبائل بجا تھا، پتہ نہیں کون ہے۔ خود سے کہتے اس نے جب فون اٹھا کر دیکھا تو ہبا ڈول کالنگ ارہم نے ہبا کا نمبر ہبا ڈول کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ ارم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا تو پھر سے آنکھیں مسلنے کے بعد موبائل اسکرین پر دیکھنے لگا۔ پہلے سوچا کہ فون نہ اٹھائے، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون ریسیو کر لیا۔ دل تو جھوم رہا تھا، مگر فی الحال وہ ہبا کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے بات کی۔ ہیلو، ارہم کا لہجہ بے تاثر تھا۔ السلام علیکم۔ ہبا کچھ کنفیوز سی تھی۔ وعلیکم السلام، جی کہیں۔ ارہم کو ہبا پر غصہ تھا مگر کنٹرول کر گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ہبا کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ارہم برس پڑا۔ آپ کو کیا مطلب؟ میں کیسا ہوں؟ آپ کو تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ شوہر ہوں میں آپ کا، اتنی کالز کرتا رہا مگر مچا ہے کہ آپ نے جواب دیا ہو۔ اگر مصروف تھی تو کہہ دیتی، کم سے کم انسان ایک میسج ہی کر دیتا۔ مگر شاید میں آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ارہم بول رہا تھا اور ہبا سن رہی تھی۔ ارہم غصے میں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ گیا، مگر مجال ہے کہ ہبا ایک لفظ بھی کہا۔ چپ سادے سب سن رہی تھی۔ تبھی ارہم کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ کیا ہوا ہبا؟ آپ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ارہم کو لگا کہ وہ پھر سے ناراض ہو جائے گی، تبھی ساری ناراضگی بلا کر وہ اس سے پوچھنے لگا، اور اب ارہم کا لہجہ کافی نرم تھا۔ کچھ نہیں، وہ سوری ہبا، بس اتنا سا کہہ سکی۔ ہبا جان، میں آپ سے بات کرنی تھی مگر آپ میری کال ہی ریسیو نہیں کرتی۔ اب ارہم کے لہجے میں جیسے چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ ہبا کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ شادی کی ساری تیاری ہو گئی تھی؟ ارہم نے پوچھا۔ تقریباً ساری تیاری ہو گئی ہے، ہبا نے کہا تو ارہم اب شرارت سوجی۔ تو آپ تیار ہو؟ اور ارہم کی یہ بات ہبا کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ نہیں، میں تو شادی والے دن ہی پارلر جا کر تیار ہوں گی۔ اور ہبا کی اس بات پر ارہم کی مسکراہٹ کافی گہری ہو گئی تھی۔ بچی ہو ابھی، بچی ہو اس لیے میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ارہم نے کہا تو ہبا اپنا غصہ اور دکھ بلا کر موبائل کو دیکھنے لگی جیسے وہ موبائل نہ ہو ارہم ہو۔ نہیں، میں بچی نہیں ہوں، اب بڑی ہو گئی ہوں۔ ہبا کی اس بات پر ارہم کا کہگہ گونجا تھا۔ اچھا، کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ ارہم کو اب اس کی معصومیت پر پیار آ رہا تھا۔ میں ابھی کچھ دنوں میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی، ہبا نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا۔ او اچھا، کب اتنی بڑی ہو گئی؟ آپ پتہ نہیں چلا؟ ہبا کے معصومانہ باتوں پر ارہم کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں اتنی تیز ہیں، اور یہ دیکھو پتہ نہیں کس جہاں سے آئی ہے۔ اس کی باتیں سنتا وہ دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر کافی دیر تک وہ اور ہبا باتیں کرتے رہے۔ آج ارہم بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی نے اس سے بات کی تو یقین نہیں آتا کہ یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ لگتا ہے اسے ابھی تک سب کچھ صحیح سے سمجھ نہیں آئی۔ چلو میں سمجھا دوں گا، یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ماما آپ نے بلایا تھا؟ ہبا مرحا کے کمرے میں گئی تو پوچھا۔ ہاں بیٹھو۔ وہ دراصل
एहतशाम भाई ने अज्जा के लिए बिया का रिश्ता मांगा था। बिया तो राजी है, तुम क्या कहती हो? मरा ने हुबा से पूछा तो हुबा मुस्कुरा दी। मम्मा, अगर वो राजी है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है? अज्जा से पूछ लें, अगर वो राजी है तो जब दुल्हा दुल्हन राजी है तो फिर क्या करेगा काजी? हुबा ने कहा तो मरा हंसने लगी। अच्छा बताओ, अरम से बात की? मरा को याद आया तो पूछ लिया। जी मामा, मगर उनकी कुछ बातें मुझे समझ नहीं आती। कह रहे थे कि अभी मैं बच्ची हूँ, उनकी बातें समझ नहीं सकती। हुबा की बातें सुनते ही मरहा ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया था। तुम वाकई बहुत मासूम हो मेरी बच्ची, और आइंदा अगर अरहम कुछ कहे तो मुझे मत बताना कि उसने तुमसे क्या कहा। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, मरहा ने कहा तो हुबा बहुत हैरत से मरहा की तरफ देखा था, और मरहा ने हुबा की हैरत को भांपते हुए उसे सब कुछ बताया। तो वो कुछ देर तक गुम सी बैठी रही। क्या यार, तुम मेडिकल पढ़कर झक मार रही हो? मरहा ने हुबा के माथे पर हाथ मारते हुए कहा। मम्मा, मैं इतनी गहराई से कभी सोचा ही नहीं। वो अब भी हैरत के समंदर में डूबी हुई थी। तो अब सोचना शुरू कर दो। शादी में 2-4 दिन रह गए हैं। मरहा को अपनी बेटी की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। मम्मा, मुझे शादी नहीं करनी। हुबा सब कुछ सोच के परेशान होने लगी। कुछ नहीं होता मेरी जान, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अरहम बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मरहा ने हुबा की हैरत से फैलती हुई आंखें देखी तो हंसने लगी। मगर हुबा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे। अगर मगर कुछ नहीं, जाओ और रिलैक्स हो जाओ। रात 8 बजे सब बिया और अज्जा के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। तुम भी यहीं आ जाना, बल्कि अरम को भी बुला लेना, वो भी आ जाएगा। मरहा ने कहा तो हुबा का चेहरा शर्म से गुलाबी हुआ था। मम्मा, मैं अरम के सामने नहीं जाऊंगी। अच्छा, अभी अपने रूम में जाओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। मैं उसकी हालत से वाकिफ थी, तभी फिलहाल उसे रिलैक्स रहने का कहा। एहतशाम ने जब अज्जा से बिया से शादी के लिए कहा तो वो काफी हैरान हुआ था। बाबा, मैं और बिया कैसे हो सकता है? वो तो इतना लड़ती है मुझसे। अज्जा हैरान सा एहतशाम को देखने लगा। तसल्ली से सोच कर बताना। एहतशाम अज्जा को बताकर जा चुका था, और अज्जा फौरन से सवेरा के पास गया था। मम्मा, आप लोगों ने बिया का रिश्ता मेरे लिए मांगा है। हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छी बच्ची है, फिर तुम्हारी फुप्पो बस मामू की बेटी है, खूबसूरत भी है और घर काम भी कर लेती है। सवेरा ने एक ही सांस में अज्जा को बिया की सारी खूबियां गिनवा दी थी। एक खूबी रह गई मम्मा, अज्जा को शरारत सूझी थी। कौन सी खूबी? सवेरा ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा था। वो जो इतनी लंबी जुबान है, जो हर वक्त कैंची की तरह चलती रहती है। अज्जा की इस बात पर सवेरा ने तकिया उठाकर उसे दे मारा। और अब वो आपको भतीजी इतनी प्यारी होगी कि उसके पीछे अपने बेटे को मारने लगी। हद है भाई। सवेरा से खानदान के सभी बच्चे डरते थे, हत्ता कि उसका भी एक नहीं डरता था तो अज्जा नहीं डरता था। अब भी अपनी माँ को तंग करने लगा था। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, करनी है तो करनी करो, नहीं करनी तो तुम्हें पता है कि अच्छी लड़कियों के लिए रिश्ते की कमी नहीं होती। और सवेरा किस बात पर हैरान रह गया। मम्मा, आप पहले से बताएं कि आप मेरी माँ है या उस? अज्जा औरतों की तरह कमर पर हाथ रखे अपनी माँ से पूछने लगा। वैसे अच्छे लड़कों के लिए भी अच्छी लड़कियों की कमी नहीं होती, लेकिन अगर आपको मुनासिब लगे तो अच्छी लड़की की शादी अपने अच्छे बेटे से कर सकती हैं। इससे पहले कि सवेरा कुछ कहती, अज्जा अपना मोबाइल उठाकर गुनगुनाते हुए कमरे से निकल गया, और सवेरा से सर हिलाकर रह गई। जब से बिया को पता चला कि उसका रिश्ता अर्तजा से तय किया जा रहा था, उसके तो हाथ पैरों में जान ही नहीं रही थी। जिस शख्स को वो दो बदू जवाब दे दिया करती थी, आज उसके सामने जाने से कतरा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने लॉन में इत्तशाम को अर्तजा से बात करते देखा था। उसे यही लगे कि अर्तजा लॉन में ही होगा। तभी किचन की खिड़की से अर्तजा को देखने की कोशिश कर रही थी। उसे ये डर था कि कहीं वो किचन से निकली और अर्तजा उसके सामने आ जाए। इस ख्याल से उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे थे। अब जबकि उसे यकीन हो गया कि अर्तजा लाउन में नहीं था, तो वो इधर उधर के देखते हुए जब किचन से निकली तो देखा कि अज्जा साहब सामने से गुनगुनाते हुए बाजार मोबाइल में मसरूफ इसी की तरफ आ रहे थे। अज्जा कहाँ बाज आने वाला था। मुझे जरा एक गिलास पानी देना। अज्जा की नजरें अब भी मोबाइल पर ही थी, मगर बात वो बिया से कर रहा था। बिया अज्जा को नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगी, तो अज्जा ने फिर से उसे कहा था, बिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक गिलास पानी दो मुझे। बिया न चाहते हुए भी उसके लिए पानी लाई थी, तो देखा कि वो अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर मोबाइल पर मसरूफ था। अज्जा, ये पानी ले लो। बिया ने पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, तो अर्तजा ने उसे वहीं कुर्सी पर बैठने का कहा था। बिया ने अर्तजा को कभी भाई कहकर नहीं बुलाया था, हालांकि वो इस बात पर बहुत चिढ़ता था। कितनी ही बार अर्तजा उसे कह दिया करता था कि वो उसे भाई कहे, मगर मजाल है कि बिया पर कोई असर होता हो। लेकिन इसमें भी ज्यादा हाथ अर्तजा का ही था। वो हर वक्त बिया को तंग करता रहता था। उसे खुद ही अपनी इज्जत नहीं छोड़ी थी, और बिया मुजम्मल और अर्तजा को एक तरह से डील करती थी। मैं बिया पहले ही कंफ्यूज थी, और अब अर्तजा के कहने पर वो उसे यकटक देखने की गई। जी, आप और आपके अलावा यहाँ कोई है?
بھی نہیں। अर्जा ने अब भी बिया की तरफ नजर उठाकर देखा था। बिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब अर्जा ने मोबाइल साइड पर रख दिया था। जी। बिया के मुंह से बेख्तियार जी का लफ्ज अदा हुआ था, जिस पर अर्जा ने अपनी हैरत को कमाल महारत से छुपाया था। बैठो यहाँ। और अर्जा के कहने वो वहां बैठ गई थी। मैंने सुना है कि तुमने मेरे हक में फैसला दिया है, अर्जा ने बहुत संजीदगी से पूछा था। अलबत्ता आंखों में शरारत झलक रही थी। सही सुना है आपने। बिया का सर झुका हुआ था। ये सब क्या कर बिया जाने लगी थी कि अर्तजा फिर से बोल पड़ा, मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछोगी क्या? आप एहतशाम मामू को बता दीजिएगा। बिया ये सब कहकर तेज तेज कदम उठाती वहां से चली गई थी। बता दीजिएगा। कितनी तमीजदार बन रही है, अर्तजा ने बहुत आहिस्ता आवाज में खुद से कहा, मगर हुबा पता नहीं कहाँ से आ गई थी वहां। और उसने अर्तजा की बात भी सुन ली थी। है कौन? किसके बारे में बोल रहे हो? उबा ने हैरत से आंखें पिलाई थी। आपकी बहन के बारे में। वैसे अब जरा मेरी इज्जत किया करो, तुम्हारी होने वाली बहन हो जो हूँ। अर्जा कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। तुम कुछ नहीं सुधरोगे। हुबा तो बस सर हिलाकर रह गई। हमजा, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। हमजा लाउंज में टीवी देख रहा था जब जिमल ने उसे बुलाया था। जी। हमजा अब जिमल के पास आकर बैठ गया था। वो जो उस दिन मुझे मेडिकल स्टोर पर मिली थी ना, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। और वो जो उसके साथ प्यारी सी लड़की थी ना, वो उसकी बेटी थी। जिमल ने खुश होते हुए बताया। तो मम्मा, आप ये सब मुझसे क्यों बता रही हैं? हमजा ने अनजान बनते हुए पूछा। वो मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी उजाला से कर दूं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और अब जिमल ने उसे सवाली नजरों से देखते था। मम्मा, आप सारा के जाने की वजह से अपसेट हैं। आपकी ख्वाहिश थी कि वो आपकी बहू बनती। मेरी भी यही ख्वाहिश थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। और हमजा की इस बात पर जिबल ने उसे काफी हैरानगी से देखा था कि वो कैसे बेबाकी से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। मम्मा, मुझे उसके जाने के बाद एहसास हुआ कि मुझे उससे मोहब्बत थी, लेकिन जो होना था सो हो चुका। इसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और अगर आप अभी भी मेरी शादी करना चाहती हो तो मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी फिलहाल अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहता हूँ। अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर इस बारे में कुछ सोचूंगा। हमजा की बात भी ठीक थी, मगर बेटा, मैं तो जिमल को कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। मामा प्लीज, किसी लड़की के लिए छोटी सी उम्र में शादी करना बेशक थोड़ा मुश्किल होता है, मगर किसी लड़के के लिए बेहद मुश्किल काम होता है। अब आप देखें कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो मैं खुद आप पर डिपेंड करता रहा हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मुझे कहे और मैं उसके अखराजात बर्दाश्त ना कर सकूं, और फिर बाबा से कहूँ मैं पहले कुछ बनना चाहता हूँ और फिर इस बार में सोचेंगे। अभी फिलहाल आप अपनी लाडली की शादी तैयारियां करें। हमजा ने जिमल का हाथ पकड़े हुए कहा। तो जिमल ताईद में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। हारिस के घर वाले आज उसवा को देखने आए थे, मगर एहतशाम को ना ही हारिस पसंद आया और ना ही उसके घर वाले। जैसे ही वो लोग उठ कर गए थे, एहतशाम ने इस रिश्ते पर नापसंदगी का इजहार कर दिया था। ना सिर्फ एहतशाम बल्कि मरहा, सवेरा, जुहेब और उसकी अम्मी सब की एक ही राय थी कि उसवा के लिए वो रिश्ता किसी तौर पर मुनासिब नहीं था। अलबत्ता उसवा कुछ उदास थी, मगर किसी ने भी उसको समझाने की कोशिश नहीं की थी सिवाय मरहा के। हम अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का देखेंगे, अगर वो इस काबिल होता तो किसी को पसंद आता ना। और फिर उसके घर वाले देखे थे किस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर तुम वही शादी करना चाहती हो तो मैं भाई से बात करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मोहब्बत हम सबके लिए रुसवाई का बायस बने। तुम बता दो उसवा, अगर इसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, या फिर उसकी मोहब्बत में कुल कलाम को तुम घर से भाग गई, तो हम सब क्या करेंगे? तुम अच्छी तरह से सोच लो, और जो भी तुम्हारा हतमी फैसला है मुझे बता देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर झूठ मत बोलना। और कोई भी फैसला करने से पहले अपनी माँ बाप के बारे में जरूर सोच लेना, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मरहर ने उसवा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। तो उसने तायद में सर हिलाया था। जुहेब, मैं चाहता हूँ कि अर्जा और बिया का निकाह भी साथ ही कर दें। एहतशाम की बात सुनते ही मरहा और जुहेब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। जुहेब कदरे पुरसकून था, लेकिन मरहा थोड़ी परेशान हो गई थी। भाई, मैं ऐसे अचानक दूसरी बेटी को रुखसत नहीं कर सकती। मैं सिर्फ निकाह का कह रहा हूँ, और वैसे भी मेरी कराची में ट्रांसफर हो गई है। अब मैंने भी यहीं रहना है। इस्लामाबाद वाला घर कुछ दिनों में बिक जाएगा, तो मैं यहाँ घर ले लूंगा। तुम्हारी बेटी करीब ही होगी, जब दिल चाहे मिल लेना करना। एहतशाम ने कहा। तो मरहा ने जुहेब को बाहर आने का कहा। जुहेब, इतनी जल्दी निकाह सब कैसे होगा? मरहा वाकई बहुत परेशान हो गई थी। जैसे हुबा का निकाह होगा वैसे ही बिया का भी हो जाएगा, मगर ये बिया अभी तक बहुत छोटी है। मरहा ने कुछ सोचते हुए कहा। तो हुबा कौन सा बहुत बड़ी है? इन दोनों में सिर्फ 1.5-2 साल का फर्क है। जुहेब के पास हर सवाल का जवाब मौजूद था। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर देता हूँ। मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में
کوئی اور چیز عزیز نہیں ہے۔ زہیب نے مرحا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ مرحا نے سب کے فیصلے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سب کی باہمی رضامندی سے طے پایا تھا۔ کیوبا کی رخصتی کے دن ہی بیگا اور ارتزا کا نکاح ہو جائے گا۔